नमस्ते एवरीवन। मैं मीना प्रकाश पाटिल, प्रेसिडेंट ऑफ इनरव्हील क्लब ऑफ देवलाली, सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और हमारे क्लब की एंथुजियास्टिक पास्ट प्रेसिडेंट संध्या सुंदरम के पास माइक हैंड ओवर करती हूँ। और टू संध्या सुंदरम। संध्या मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। संध्या जी आप अनम्यूट हो, आप बोलिए। बोलायला ते काय करावं आणि खाट मारल्यावर ते झालं. Sandhya madam, can you hear me? Sandhya, we cannot hear you. No voice. संध्या जी आपको स्पॉटलाइट कर दिया है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपका ऑडियो ऑन है, आप माइक पास लीजिए। आपका माइक बंद है शायद। आवाज नहीं है। आवाज नाही येत मॅम. मॅम तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करा. Now can you hear me? Yes, Can yes, you hear yes. me? Yes, yes, ma'am. Yes, Start, ma'am. start. Okay. Yes. Thank you. Yes, yes. Thank you, ma'am. Honorable District Chairman 303, Meenal Lati ji, IDC Vaijayanti ji, District Vice Chairman Ashwini ji, District ISO Padma ji, District PDC Veena ji, Life Coach Gyaneshwar ji. On behalf of the Innerville Club of Devlali, I welcome you all to this evening opening session of Mind and Body Relaxation. Well, health is a state of complete harmony of the body, mind and spirit, says Yoga Guru B.K.S. Iyengar. Our thoughts, feelings, beliefs and attitudes can positively or negatively affect our biological functions. Therefore, we need to adopt a healthy attitude to balance the body, mind and spirit. We are living in troubled times where relaxation is a need of the hour. Therefore, we have this mind and body relaxation shibir. Now I hand over the microphone to our President of Innerville Club of Devlali, Mrs. Meena Patil.
Over to Mrs. Meena Patil. Thank you, Sandhya ji. Thank you. Good evening, everybody. Namaste, everyone. I will introduce the today's life coach and the director of this mind body relaxation shibir, Mr. Naneshwar Chaudhary. Naneshwar Chaudhary, BE Electronics, MMS, MCSC, CCNA. His profession is life coach. Learned skills from many national and international masters. He is landmark graduate. Social projects like blood donation camps, tree plantation, big support to flood affected people, girls empowerment, business profile, counseling individuals for family members about their problems and growth, business development coaching, effective parenting, healthy and loving relationship in family, guide in career growth coaching, etc. Coaching in every challenging situation of life. And we are lucky to have you, sir, in our mind and body relaxation shibir in this corona pandemic. Thank you so much and wish you all the best. Over to Naneshwar, sir. Yes, sir. Thank you, ma'am. First of all, I welcome all the respected participants in this shibir, and I pray with God to give all of you the best values from this shibir. First of all, I would like to thank IWC Chairman Minalji and IWC District Devlali 303 President Meenaji Patil Madam. I have gone through all the great social works of IWC, and I would like to congratulate all the presidents, past presidents, for their devotional works for community. Yesterday only, Meena Patil Madam has taken a charge of President of Devlali 303 District 303 President. The fellowship program happened yesterday. Unfortunately, I could not attend because of some responsibilities. And today, Minalji and Minaji, the first day of their working, they have conducting this shibir. Every work is important, but now this is the most challenging situation all over India, all over the world, and this is the great social service to the community to release their fear, anxiety, depression, everything. So, madam, your work will be written in golden words. I assure you, you are doing a noble work for the society, because this is the most needed concept, most needed solution people are requiring nowadays. So thank you very much, and God bless both of you and all your Innerville committee members. Okay. Thank you, sir. Yes. Now you can start this. Now I request our loving, caring, and dynamic district chairman of 303, Minalji Lati ma'am, to declare this shibir open. Thank you, President Meena ji, for giving this opportunity. Namaste, everyone. Namaste, ma'am. The mega event of mind and relaxation session starts. Hi, Minal. Naneshwar sir to session. Please, Naneshwar sir. continue. Thank you, Minalji, for declaring the event open. Now I request today's life coach, Mr. Naneshwar Chaudhary, to take over the session. Thank you, sir. Yeah, thank you, ma'am. इस शिविर की शुरुआत हम
कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ, माइंड एंड बॉडी रिलैक्सेशन, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो उसका जन्म बी ऑथेंटिक पहले स्टार्ट हुआ मेरे फियर से। मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो एक दिन मैं भी बहुत फियर में, डिप्रेशन में, टेंशन में आ चुका था बिकॉज ऑफ दिस हैपनिंग्स। आई नो द टेक्निक्स, आई इजीली कम आउट ऑफ दैट। Then I conducted sessions for my brothers, my sisters, my relatives, my clients on the journey. Then I declared a thought that I will reach to 10,000 people and reduce their fear, anxiety from this corona महामारी को मुक्त करने का मैंने संकल्प लिया। और फिर मैंने ऑनलाइन एक सेशंस कंडक्ट किया। मीना जी पाटिल मैडम उस हमारे टीम के एक एक्टिव कोर कमेटी मेंबर है, तो उन्होंने पूरा वो शिविर भी अटेंड किया। और थैंक्स टू रेडियो विश्वास ने वहां पर मेरी एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज की 20 जून 2020। और वो इंटरव्यू रेडियो ब्रॉडकास्टिंग लगभग 25 से 50,000 लोगों ने सुनी होगी। उनके 5.25 लाख लोग सब्सक्राइबर्स है और लाइव सुनने वाले हैं। तो 10,000 का वहां तो टारगेट पूरा हो गया। और वो उस 20 मिनट के मेरे स्पीच में 10,000 लोगों तक वैल्यू चली गई और वो वहां से रिलैक्स हो गए। फिर मैंने सोचा कि वाई टू लिमिट 10,000। फिर मैंने वो बढ़ा के कर दिया सीधा 10 लाख लोगों तक हमें ये सेवा पहुंचानी। और ये पूरी सेवा है, यहाँ पे किसी को कुछ सिंगल पैसा अर्न नहीं करना है। और मेरे साथ इस काम में, इस मिशन में और भी कई लोग जुड़े हैं, उनका नाम लेना चाहूंगा। कोपरगांव से सौ वृंदा कोराड़कर मैडम जी, नगर से डॉक्टर प्रांजल चौड़िया जी, प्रसाद झेंडे जी, दुनिया से रंजना नेवे मैडम जी, अहमदाबाद से प्रशांत खड़से जी, स्नेहल कामड़े जी, संजय चौधरी जी, और ऐसे बहुत सारे टीम मेंबर्स मेरे साथ में एक्टिवली जुड़ गए। और वहां से ये सफर शुरू हुआ। और उस सफर का ये नया पड़ाव है कि हम IWC मेंबर्स के लिए ये शिविर कंडक्ट कर रहे हैं। मैंने ग्रुप में जैसा मेंशन किया है कि शिविर से आई एश्योर यू 100% वैल्यूज यू विल गेट, नॉट बाय द एंड ऑफ शिविर बट टुडे इटसेल्फ। अभी इसी सेकंड में आपको रिलैक्स करूंगा। इसी सेकंड जैसा मेरा चल रहा है, सेशन चल रहा है, बस केवल एक यहाँ पे अपने नोज को यहाँ पे पकड़िए सब लोग, जस्ट टॉप ऑफ द नोज वहां पे पकड़िए, थोड़ा दर्द कीजिए एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अपनी सांस आ रही जा रही वहां पे जरा जो टच हो रही वहां पे फोकस कीजिए। मेरी आवाज सुनिए, खाली सुनिएगा। ओके, हम एक एक्सरसाइज करेंगे। किशमिश मैंने बोला था, सब लोगों ने लाया होगा, किशमिश लाया होगा। ओके, जिन लोगों ने लाया तो जरा, जिन्होंने लाया प्लीज किशमिश रेजिन्स अपने हाथ में लीजिए। लाया कुछ लोगों ने लाया रेजिन्स? लाया है? ओके, लाया तो ठीक है, नहीं तो घर पे बाद में कर कीजिएगा। तो रेजिन्स को ऐसे अपने हाथ में पकड़िएगा और उसे देखिएगा प्यार से, उसका शेप, उसका कलर, तो कितनी प्यारी वो किशमिश दिख रही है उसको देखिएगा, नजर से देखिएगा, नजदीक से देखिएगा, उसका थोड़ा पास से स्मेल लीजिएगा। अब आपके मुंह में तो हलचल शुरू हो गई, उसे नोट कीजिएगा और नजदीक से देखिएगा, उसे मुंह में नहीं डालने का। जस्ट लव दैट, वो किशमिश को प्यार कीजिएगा। अब उसको केवल मुंह में डालना है, खाना नहीं, चबाना नहीं, केवल मुंह में ऐसे डालना है। बस मुंह में डाल के उसको एक साइड में रख दो, उसको उसका टेस्ट फील करो, उसका शेप फील करो, उसका स्पर्श, गालों में जो स्पर्श है उसे फील करो। अब उसे अपने मुंह के अंदर रोटेट करो, केवल रोटेट करो, उसे खाने का नहीं, जब तक मैं ना बोलूं, रोटेट करो। अब देखो आपके मुंह में पानी आ गया होगा बहुत सारा। अब उस किशमिश को धीरे से थोड़ा पंक्चर करो, स्लाइटली पंक्चर करो, पूरा मत, थोड़ा स्लाइटली पंक्चर करो। और उसमें से देखो प्यारा सा मीठा सा जूस निकल रहा है। उस जूस का टेस्ट फील करो, उस जूस का स्पर्श फील करो, अपनी जीवा पे उसका स्पर्श फील करो। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। धीरे धीरे उसका सब, उस टेस्ट, स्पर्श, वो सब फील करो। अब किशमिश को चबा जाओ। आपने किशमिश तो कुछ नया पहली बार नहीं खाई होगी, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं
इससे पहले आपने एक साथ 20 किशमिश खाई होगी, रेजिन्स खाई होगी, 25 खाई होगी, 50 खाई होगी, लेकिन जितना मजा आज आया उतना मजा उस टाइम नहीं आया होगा, क्योंकि हम उसे हर पार्ट में टेस्ट करके के फिल करके उसके ले रहे। सेम थिंग इससे मुझे आपको 2 मैसेज देना है। पहला मैसेज कि हम खाना खाते वक्त जो स्पीडली खाते हैं, तो ऐसा ही वो खाना भी खाइए, वो भी आपको इतना ही मीठा टेस्ट देगा। और दूसरा मैसेज है पेशेंस। बहुत सारे लोग शिविर में ज्वाइन तो हुए, लेकिन शिविर शुरू होने से पहले ही जिससे कुछ नहीं आ रहा है, they lost their patience, they left the शिविर। ओके, अब जो चले गए वो क्या मिस करेंगे। सो लाइफ में ये जो किशमिश में हमने जो 1 मिनट 2 मिनट का जो टेस्ट में लगाया ना, जो उसको पूरा खाने में लगाया, द सेम थिंग लाइफ में हमें हर बात पे पेशेंस रखना है। वो रिलेशंस में हो, वो सक्सेस में हो, वो कोरोना में हो, हर जगह पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो जो कुछ गलत सारी घटनाएं होती है और जो हम सक्सेस के बगैर फेल्यूर पा लेते हैं, दैट इज लैक ऑफ पेशेंस। सो ये लेसन आपको पेशेंस के लिए था। सो थैंक यू वेरी मच, होप यू ऑल वुड हैव लाइक दिस। अभी हम स्ट्रेस कहां से आता है, फियर कहां से आता है, उस पे जाते हैं। देखो आजकल है ना, जो लाइफस्टाइल बन गई, छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस में हैं, जो बड़े हैं जो जॉब करते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं जॉब बिजनेस के कारण, वहां पर जो लोड है उसके कारण। बहुत सारे महिलाएं, माता भगिनी, वो टेंस में आ जाती है, तनाव में आ जाती है, वो तनाव फील करती है। ये कैसे होता है? सिंपल सा उसका तरीका है। टेंशन आता है, फियर आता है किसी भी इंफॉर्मेशन से। हम कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आंखों से, कानों से या और कुछ किसी माध्यम से हम उसे, जब वो इंफॉर्मेशन को सुनते हैं, देखते हैं और बाद में उसका विचार बनता है, और वो विचार फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर धीरे 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 वो स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन वो लेवल पे जाता है। तो हमें ये हो गया द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड फियर। अब हम लोग और एक प्रैक्टिकल करते हैं। ये एक डिब्बा है, इसमें लगभग कुछ 300-400 ग्राम का वेट होगा। किशमिश का डिब्बा है, आधा किलो का था तो कुछ कम हो गया होगा। अब मैं इसको मेरे हाथ में कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही मेरा हाथ स्टेडी रख के स्टेडी पोजीशन पे रखता हूं, कुछ नहीं होगा। अब इसे मैं 1 मिनट तक रखता हूं, कुछ नहीं होगा। 2 मिनट 5 मिनट तक रखता हूं तो थोड़ा दर्द चालू हो जाएगा, और अगर 10 मिनट रखता हूं ज्यादा दर्द होगा, 1 घंटे में ज्यादा दर्द होगा। अगर 10 घंटा ऐसे रखता हूं तो और ज्यादा दर्द होगा। अगर मैं 2 दिन तक रखूं तो हो सकता है कि मेरे हाथ में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए और कंधे से हाथ डैमेज हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो इसको करना क्या है, बस मैंने डिब्बा खोला, किशमिश ली, खा लिया, मेरा काम खत्म हो गया, इसे रख दिया। सेम थिंग वी हैव टू डू विथ द डेली प्रॉब्लम्स। अपने डेली में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्याएं आती है, तो उनको यही करना है हमें। बस आई, उसको लिया, हैंडल किया, उस पर वर्कआउट किया, छोड़ दिया। हम वैसा होता नहीं, हम उसे कैरी करते हैं। कितनी देर कैरी करते हैं? 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, एंड सो ऑन, फ्यू ईयर्स। हम जब सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता, वो उस थॉट में कंटिन्यूस रहता है। और अगर किसी बात पे ज्यादा सोचना शुरू कर दिया तो सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे वो ज्यादा वर्कआउट होता है। सो ये तो होते रहेगा। फिर करना क्या है, ये जाएगा कैसे? सिंपल सा वे है। अब एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मीना पाटिल मैडम है, मिनल जी मैडम है, और या मैं हूं। अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, या फिर आप किसी भी और सोशल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगे, तो उस समय सपोज मीना पाटिल मैडम के यहाँ पे काम वाली बाई नहीं आई होगी और उनको तो प्रोजेक्ट रन करना है, 3-4 दिन से बिजी होगी, आई नो। तो क्या आप सोच सकते हो भाई का उन्होंने टेंशन लिया होगा? ओके, नहीं आए तो नहीं आए, आज करेगी नहीं तो कल काम करेगी। अगर वो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होती थी तो टेंशन ले सकती थी कि यार मेरी काम वाली आज नहीं आई, 2 दिन से नहीं आई, लाइक दैट। लेकिन अब उनका फोकस किसी और चीज पर है, तो वो टेंशन नहीं आएगा। वो टेंशन एग्जाम्पल है, और रिलेशन का टेंशन हो सकता है, पैसे का हो सकता है,
आपके सक्सेस का हो सकते हैं। सबसे बड़ा टेंशन है कि आप लोग सोशल वर्क में काम करते हैं, मैं भी सोशल वर्क में काम करता हूँ। घर बैठे बैठे ऐसे हाथ पैर साथ नहीं देते, बोलते कुछ करो, जाओ बाहर जाओ। लेकिन ऑल द रिस्पेक्टेड लेडीज, मैं हाथ जोड़ कर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये माहौल बाहर जाने के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है पुणे में, दिल्ली में, इंदौर में कुछ सोशल वर्कर्स, दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स। ओके, हमें सोशल वर्क करना है, लेकिन सोशल वर्क करने के लिए हमें अलग माहौल है। ओके, तो अभी आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि बाहर मत जाओ। बाहर के बाद उससे भी ज्यादा सोशल वर्क आप कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने मिशन लिया है कि 10 लाख लोगों को रिलैक्स करना है, वैसे आप कोई भी मिशन लीजिए, एंड द बेटर वे यू कैन सर्व द पीपल। आपका काम भी हो जाएगा और आपकी सिक्योरिटी भी हो जाएगी। सो ये आप कर सकते हैं। अभी हम सोर्सेस ऑफ फियर पे जाते हैं। सोर्सेस ऑफ फियर क्या है? हमें फियर्स कहाँ से, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंस कहाँ से जनरेट होते हैं? तो सबसे पहला सोर्स है उसका अपना चहेता टीवी, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट। हम जब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, हम जब फोन कॉल करते सब, यहाँ पर अक्सर क्या होता है, अक्सर न्यूज में हम पाते हैं कि निगेटिव न्यूज आती है, इतना बढ़ गया, नासिक में इतना बढ़ गया, मालेगांव में इतना हो गया, महाराष्ट्र में इतना, इंडिया में इतना, वहां पर उतना। ओके, और ये अपने को पता भी नहीं चलता कि हम वो सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे फियर कैरी कर रहे हैं। ओके, और ये बढ़ता है। एक सिंपल सा एग्जांपल, अभी आप सब लोग मेरा सेशन सुन रहे हो और आपकी कुछ गलती नहीं, मैंने सेशन में से किसी एक का नाम लिया, सपोज कोई XYZ, सपोज लेता हूँ ऐश्वर्या राय का नाम लेता हूँ, चलो उस सेशन में आई है, मेरा शिविर अटेंड कर रही है, और मैंने बेवजह उसको कुछ गलत सलत बोल दिया, इंसल्ट कर दिया, मूर्ख है ऐश्वर्या राय तू। बस उसकी कुछ गलती नहीं, गलती मेरी है, मैंने उसको अंडर एस्टिमेट किया है, गलत उसके बारे में प्रिपरेशन कर लिया और मैंने बोल दिया कि ऐश्वर्या राय तू मूर्ख है। अब होगा क्या, ये बात वो कैरी करेगी। ओके, कैरी करेगी और डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसी छोटी सी बात है जिससे वो ऐश्वर्या राय डिस्टर्ब हो गई, वो 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, आई डोंट नो। लेकिन कोरोना का तो बड़ा इम्पैक्ट है, उससे तो डिस्टर्ब होना बिल्कुल वाजिबी है। तो और हो गए, मैं भी हुआ, आप भी हो गए, हर कोई होता है। ओके, सो इसका बड़ा इम्पैक्ट है, तो उसको हमें अवॉइड करना है। अब टीवी सोर्स, मैंने लास्ट 40 दिनों से कोई टीवी न्यूज नहीं देखी। मेरे कुछ अच्छे सोर्सेस है जहां से मुझे पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप भी वो सोर्स के जरिए इंफॉर्मेशन, अगर आपको देखना है तो मना नहीं करता मैं, लेकिन अभी उसको कैसे लेता हूं मैं आपको बोलता हूँ इन व्हाट वे आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। कि अभी सपोज न्यूज आई कि नासिक में ज्यादा फिगर्स बढ़ गए, तो मैं मेन रोड पे जाना बंद कर दूंगा, मैंने बंद कर दिया। मैंने मेरे प्रिकॉशन जो घर पे वो बढ़ा दिए, मैंने उसके पीरियड बढ़ा दिया, मैंने अपने आप को ज्यादा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। ओके, ऐसे मैंने उसको एज अ अलर्ट, अवेयरनेस उस जरिए से लिया। अब मुझे कुछ फियर परेशान नहीं करना। और लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया के, हमारे इंडियन नेशनल बैंक के मैनेजर श्री हायर साहब वो पॉजिटिव निकले, और ये न्यूज आई सैटरडे को, अभी 2-3 दिन पहले, और फ्राइडे मैं मेरे काम से बैंक में गया था। अब जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो पहला मेरा रिएक्शन था यस, मुझे डर लगा, आई एम ऑथेंटिक, मैं पहला रिएक्शन था, मैं डर गया, अरे मैं तो गया था वहां पर यार। ओके, फिर इमीडिएटली नेक्स्ट सेकंड मैं खुद को रिलैक्स किया, मैं बोला कुछ प्रॉब्लम, एंड देन आई कंडक्टेड द मीटिंग सेशन, प्लान जूम सेशन मीटिंग सेशन फॉर द स्टाफ वर्किंग इन दैट बैंक। तो उस बैंक के स्टाफ के साथ मैंने संडे को, और बाकी बैंक वाले लोगों की 78 लोग उस मीटिंग में शॉर्ट नोटिस पे आए थे, पुणे से थे, कुछ उनमें से सेशन में भी हो सकते हैं, अगर आई डोंट नो मैंने ऐड किए होंगे तो। पुणे से थे, बॉम्बे से थे, और जगह से थे, जलगांव से, धुलिया से थे, और वो उन लोगों का लगभग 1.25 घंटे की इफेक्टिवली मीटिंग कंडक्ट, रिलैक्स हो गई। ये बोलते हैं कि लाइव वर्किंग, लाइव समस्या पे बिल्कुल तुरंत उस पर लाइव सॉल्यूशन, तो ये यहाँ पे वो हो गया। अब हमें अभी टीवी देखना है, व्हाट्सएप मैसेज देखने हैं, न्यूज़पेपर भी मैंने मार्च से बंद कर दी, जरूरत नहीं है उसकी। अब ये सब करना है आपको, तो क्या करना है, सुबह उठने के बाद 2 घंटे तक आप कोई भी न्यूज नहीं, चैनल नहीं खोलोगे। 2 घंटे तक आप व्हाट्सएप के कोई भी मैसेजेस नहीं खोलोगे, क्योंकि 2 घंटे में आपका जो जिस वे से आप डे स्टार्ट करते हो ना, तो वैसा आपका दिन जाएगा। अगर आपने डर के साथ स्टार्ट किया, पूरे दिन भर डरे रहोगे।
अगर आपने अच्छे प्लेयर के साथ एनर्जी के साथ स्टार्ट किया तो आप में एनर्जी रहेगी। चॉइस इज यूअर्स। ओके, तो मैं रिकमेंड करूंगा सुबह मत देखो। वैसे रात को सोने से पहले 2 घंटा पहले न्यूज चैनल, सोशल मीडिया मत देखो। हाँ, उनमें से कौन सी चीज आप देख सकते हैं, जैसे अभी ये शिविर है, यहाँ पर तो कोई निगेटिव आएगा नहीं, तो ऐसे ग्रुप आप देख सकते हैं। या फिर आपके कुछ काम का, बॉस का न्यूज है, आपके कुछ नजदीक के रिश्तेदार का मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको डील करना है, ओके, तो वहां पर आप वो देख सकते हैं। लेकिन जनरलाइज मैसेज नहीं देखना, वहां पे सारी निगेटिविटी होती है। वो चाहने वाला वो निगेटिव नहीं होता, वो चाहता है कि भला हो, ओके, लेकिन उससे मैसेज निगेटिव जनरेट होता है, तो आपको वो अवॉइड करना है। ओके, तो ये सारी चीजें जो निगेटिव करते हैं, हमें परेशान करती है, भय, डर, टेंशन, एंजाइटी जनरेट करती है, उनको हम अवॉइड करना है। मॉर्निंग एंड इवनिंग बीच में आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जो दिन है उसमें थोड़ा सा बदलाव कीजिए, उसमें कुछ सपने देखिए, ठीक है, आपको सपने देखो, सपने देखने कोई टैक्स नहीं है। ओके, इस माहौल से बाहर आना है ना, सपने देखो, मेरा भी बंगला होगा, मेरी भी गाड़ी होगी, मैं भी एक्टर बनूंगा, एक्ट्रेस बनूंगी, मेरे भी कुछ सीरियल्स निकलेंगे, मैं करूँ, मैं भी कुछ IWC की नेशनल लेवल की प्रेसिडेंट बनूंगी, ओके, इंटरनेशनल लेवल पे जाऊंगी। देखो, सपने देखो, और जैसे आप सपने देखना शुरू करते हो तो सब फियर, एंजाइटी, टेंशन सब हट जाएंगे, क्योंकि आपने माइंड को अलग काम दे दिया। वो बोलता है कि नहीं, ये काम तू कर बेटा। ओके, फाइन। तो आपको ये सारी चीजें करनी है। अभी हम लोग, आप सब लोग बोलते हैं, मैं अभी आज आपको मस्त 4 सॉल्यूशन देता हूँ, कोरोना को कैसे मारा जाए, उस पर कैसे जीता जाए। तो सबसे पहला सॉल्यूशन मेरे जो इंपॉर्टेंट असर है, 4 पिलर्स, अपने 4 पिलर्स। पहला पिलर है गवर्नमेंट के नॉर्म्स। घर में हम जो भी सब्जी, किराना, राशन जो भी लेते हैं, उसको कैसे रखना है, क्या करना है। दूध के थैले आधा घंटा शर्ट में भिगो दो। सब्जी या फल लाए, उसको 3 घंटा खाने का अपना जो सोडा होता है, व्हाट यू कैन कॉल, तो उसमें मराठी में उसको खाने सोडा बोलते हो, तो उसमें, और उसमें नमक मिला के उसमें 3 घंटा भिगो के रख दो। बाद में उसको निकाल के थोड़ा सुखा के बाद में फ्रिज में रख दो, इम्पैक्ट क्लियर हो जाएगा। राशन लाया, फ्लोर मिल से आटा पीस के लाया, उसको साइड में रख दो 5 दिन के लिए, उसमें कोई इन्फेक्शन सब मर जाएगा। 5 दिन के बाद उसको नीचे उतारो या फिर रूम में किसी कोने में रख दो। ऐसे सेम थिंग, जो नाशवंत चीजें नहीं है उनको आप 5 दिन के लिए सीधा क्वारंटाइन कर दो। मेरा सीधा फॉर्मूला है। पहले मैं 3 दिन करता था, ज्यादा बढ़ने के बाद मैंने 5 दिन शुरू कर दिया। ओके, सो ये पहला पिलर आपका मजबूत हो गया, यहाँ से कुछ डर, आपको कुछ खतरा नहीं है। सेकंड पिलर है आपका न्यूट्रिशियस। आप जो खाना खाते हैं, फल, सब्जी, ये सब प्रॉपर, यू नो ऑल, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो न्यूट्रिशियस खाना खाइए, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स खाइए, और उसके साथ साथ आप और ऐड कीजिए, जैसे होम्योपैथी की दवाई है, आर्सेनिक, ALB30, ओके, और आयुर्वेदिक के कुछ काढ़े होते हैं, ओके, वो जड़ी बूटियां मिला के वो सब 7-8 करके, उसमें से है ना, आई विल रिकमेंड, अगर टेंशन भगाना है ना, तो अश्वगंधा जो है वो बहुत पावरफुल है। अश्वगंधा रिश्ता कुछ मिलता है बैद्यनाथ के या झंडू के या फिर अपने रामदेव बाबा जी के, तो अश्वगंधा रिश्ता जरूर लीजिएगा। लेकिन वो जिनका लो BP है वो उसे ना इस्तेमाल करें, ओके। लेकिन जो बाकी नॉर्मल है वो अश्वगंधा रिश्ता आप ले सकते हैं। वो पानी के साथ लेना है, इक्वल क्वांटिटी, 3 चम्मच अश्वगंधा रिश्ता, 3 चम्मच पानी, या फिर 4 चम्मच भी ले सकते हैं। वो आपको इसमें से बहुत फायदा देगा वो, ओके ओके, फाइन। तो आपको कुछ एलोपैथी के बूस्टर से विटामिन C है, कैल्शियम है, A to Z विटामिन है, वगैरह वगैरह, आप बेटर जानते हो, तो वो आप बूस्टर से, आपका सेकंड पिलर मजबूत हो गया। 2 पिलर मैंने मजबूत कर दिए। अब तीसरा पिलर है, बहुत सारे हम लोग करते नहीं है, एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, रनिंग, जॉगिंग, एरोबिक्स, जिम, घर में जो भी आप करते हो, तो ये वह कीजिएगा, ओके। हमको अभी चॉइस नहीं रही हो, मस्ट हो गया है। जैसे बच्चे को अगर सेकंड स्टैंडर्ड में जाना है तो उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड पास करना उसके लिए मैंडेटरी है, वैसे हमारे लिए अभी मैंडेटरी है। अपने अपने उम्र के हिसाब से, अपने अपने उम्र के हिसाब से ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये तीसरा पिलर भी मजबूत होना जरूरी है, ओके। ये 3 पिलर हो गए, और सबसे बढ़िया और चौथा पिलर है जो मेरे चॉइस का है, मानसिकता। यहाँ पर ज्यादा काम नहीं हो रहा है, इसी के कारण हमने अच्छे अच्छे लोग खो दिए। सुशांत सिंह राजपूत हो गया, जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस हापर जी हो गए, दिल्ली के IRS ऑफिसर हो गए, कुछ किसान हो गए, नासिक में काम करने वाला बैंड पथक में काम करने वाला वो लड़का हो गया। ऐसे हर जगह घटनाएं हो रही है बिकॉज ऑफ
मानसिकता उनकी लो पे आ गई, डिप्रेशन बढ़ गया और उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो हम मानसिकता पे ये सेशन पे बहुत सारा हमारा जो 90% वर्क है, 80% 90% हम मानसिकता पे काम करेंगे। और मैंने तो आज ही जो बातें की है, इस सेकंड को मैंने जो बातें की है कि आप निगेटिव चीजों मत, फोन कॉल्स है जो भी है, बात करना है अपनी बहन से, सहेली से, तो सीधा पॉजिटिव बोलिएगा, निगेटिव बातें नहीं शेयर। ओके ठीक है, कोरोना है, ओके एज इट, ओके रहने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मैं मेरे चारों पिलर्स मजबूत हो गए, मुझे कुछ भय डर टेंशन नहीं, तू भी ये 4 पिलर मजबूत कर ले, चल मैं तुझे सिखा दूं कैसा करना है। बस रिलैक्स कर दो, बातों से सकारात्मक बातें करो। ये जो देखना है टीवी न्यूज़पेपर वगैरह सारा, तो वो सब अवॉइड कर दो। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट या लेट नाइट इवनिंग, उसे अवॉइड कर दो। तो ये इतना छोटा सा सिद्धांत से मैंने आपको रिलैक्स कर दिया। आगे शिविर नहीं भी किया आपने तो आपको चल जाएगा, लेकिन आगे शिविर में जो करोगे उससे आपकी मानसिकता और बूस्ट होने वाली है, और वो बोनस है। ओके, मैंने तो आज ही आपको दे दिया, चारों पिलर्स दे दिए, चारों पिलर्स पे आप मजबूत कर लो। सिंपल है मेडिटेशन, मेडिटेशन के नाम से बहुत सारे, मैंने हंड्रेड्स ऑफ मेडिटेशन के टेक्निक सीखे हैं। ओके, तो उनमें से सिंपल मेडिटेशन जो मेरा इनोवेशन, मेडिटेशन मतलब क्या है, कुछ ज्यादा हृदय पे मेडिटेशन करो, बॉडी पे करो, ये करो, वो करो, वो बहुत बढ़िया है, सबके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। कुछ सांसों पे लगता है, लेकिन सांसों पे भी कॉन्सेंट्रेट करना इजी होता है। मैं बोलता हूँ सिंपल है, आप अपने, अब मेरे साथ अभी बैठे मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ थॉट नहीं है, पूरा आप मन से, शरीर से मुझे सुन रहे हो, शांति से सुन रहे हो, ये मेडिटेशन हो गया आपका। घर में आप काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बैठे बैठे कोई लेडी अपना सब्जी चलो भिंडिया की सब्जी है, उसको भिंडी को वो जस्ट उसको उसके पीस कर रही, छोटे छोटे टुकड़े कर रही, उसका पूरा ध्यान हो भिंडी के सब्जी के ऊपर। कुछ अपना रोटी बना नहीं, बस उसका शेप कितना मस्त गोल आ रहा है, बस उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो गया मेडिटेशन। ये मेडिटेशन है। ओके, आप झाड़ू लगा रहे, बस काम वाले झाड़ू लगा, आप लगा रहे, उसके ऊपर ध्यान पूरा हो गया मेडिटेशन। मेडिटेशन इतना सिंपल है, जैसे रामदेव बाबा ने योगा सिंपल किया, प्राणायाम सिंपल किया, वैसे मैंने मेडिटेशन सिंपल किया। हर चीज में मेडिटेशन है। आप मैं अभी बैठे बैठे मेरे रूम में वो फैन है, उसको देख रहा हूँ, हो गया मेरे, कितना कैसा घूम रहा है, उसका रोटेशन कैसे हो रहा है, हो गया मेरे मेडिटेशन। इतना सिंपल है मेडिटेशन। आप हर जगह पे हर पल मेडिटेशन कर सकते हो, आंखें खुले रख के भी कर सकते हो। ओके, तो इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। ओके, सो आपका चौथा पिलर भी मैंने मजबूत कर दिया। अब हम कोरोना क्या है, कोरोना मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको आप लाइफ के किसी भी एग्जांपल से उसकी तुलना कीजिए। आपके घर में अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो फाइनेंस का उससे कंपेयर कीजिए। अगर कोई रिलेशन का प्रॉब्लम, रिलेशंस का वजह से स्ट्रेस है तो उससे आप रिलेट कीजिएगा। मैं अभी कोरोना लाइव टॉपिक है, उसको सबकी जरूरत है, इसलिए मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। तो कोरोना क्या है, कोरोना एक है एटीट्यूड है। ओके, एक एटीट्यूड है वो, तो उससे हम, उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, उसको कैसे करना है। उसको हमें करना है, एक अफ्रीकन कंट्री में पुरानी एक बात है कि वहां पर अपने कपड़े सेल्स करना चाहते थे, और कंपनी का बढ़िया सा सेल्समैन, उसको जिसका टारगेट अच्छा था उसको ऑब्वियसली भेजा गया। तो वहां गया तो वहां देखा उसने, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है लेकिन लोग कपड़े नहीं पहनते। लोग वो उनका जो जंगल की जो पत्तियां, झाड़ फूल जो पत्तियां है, वो पाला वगैरह वो सब लगा के अपने जीवन जी रहे। तो परेशान हो गया, बोलता है कि क्या यार, यहाँ पे भेज दिया मुझे, यहाँ पे कोई किसी की बदन पे कपड़ा नहीं है, और यहाँ पे कहाँ कपड़े मैं सेल कर पाऊंगा। वो बोलता है बॉस सॉरी, आई एम कमिंग बैक, मैं वापिस आ रहा हूँ। वो कंपनी में वापिस आ गया, बोलता है कि कहाँ मुझे भेज दिया, मेरे दिन बर्बाद हो गए। फिर उन लोगों ने मीटिंग कंडक्ट की कि भाई क्या किया जाए। अभी वहां पे अगर हम बेच सकते तो अपना कंपनी का सेल बढ़ जाएगा। तो दूसरा एक सेल्समैन है, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, देखो क्या कुछ होता है। तो वहां गया, उससे भी सेम प्रॉब्लम, लोग कुछ कपड़े पहनते हैं, उसे कपड़े के बारे में कुछ पता नहीं है। तो उसने देखा कि यार यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे इन लोगों में कपड़े पहनने सिखाऊंगा और वो कितने अच्छे दिख सकते हैं, कैसे वो अपनी लाज शर्म बचा सकते हैं, उनको मैं सिखाऊंगा। तो उसने सीधा कंपनी फोन किया, बोलता है कि मैक्सिमम जितना हो सके उतना मुझे भेज दो, यहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छी एक मेरा टारगेट अचीवमेंट हो सकता है। तो देखो दोस्तों, सिचुएशन सेम है। अफ्रीका में लोग कपड़े नहीं पहनते। पहले वाले सेल्समैन लिया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस है, ये नहीं हो पाएगा। और दूसरे वाले सेल्समैन ने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी
कि यहाँ पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, ये लोग इस्तेमाल नहीं करते, इनको मैं किसी भी लेवल के कपड़े बेचूंगा तो ये तो आराम से कर लेंगे, इनको ज्यादा चॉइस नहीं रहेगी, मेरे लो कॉस्ट के या लो क्वालिटी के कपड़े भी यहाँ पे आराम से बिक जाएंगे। ओके, तो ये होता है कि कोरोना के साथ हमें डील करना है, तो हमें यही करना है। हमें करना है, कुछ लोग जो डर जाएंगे, निगेटिव सोचेंगे कि क्या यार ये क्या बीमारी आ गई, परेशानी है, 3 महीने से लॉकडाउन में पड़ा हूँ, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, कुछ लोग भी सुनते नहीं, सब बढ़ रहा है, सब निगेटिव बात है, सब निगेटिव। अब इससे क्या होगा, उसका डिप्रेशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, उसकी बीमारी अपने आप ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, सो ये होगा एक एग्जांपल। अब दूसरा वाला क्या सोचेगा, चलो ठीक है, आया है, जैसे जीवन में समस्या, डेंगू आया, मलेरिया आया, चिकनगुनिया आया है, वैसे ये भी एक नई बीमारी आएगी, चली जाएगी, चलो फेस करते हैं इसे। वो पेशेंस रखे तो होम्योपैथी की दवाई आ गई, और पेशेंस रखे तो रामदेव बाबा ने दवाई निकाल ली। अब जिन्होंने पेशेंस नहीं रखे, वो उन्होंने प्रॉब्लम भुगत लिए, अपने खुद के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कितना लेवल पे बढ़ा लिया, गॉड एंड दे ओनली नोज। तो हमें उसे सकारात्मक सोच से लेना है, उसे हमें पेशेंस रखना है, डील करा रहे। हमें यह सोचना है कि मैंने अभी 4 पिलर सीख लिए, इनमें से हो सकता है मुझे कुछ पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, लेकिन आज मुझे 4 पिलर्स के पता चल गए, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने। अगर 80 साल का मेरे बुजुर्ग भी है और उसकी अगर मानसिकता स्ट्रांग है, तो 25 साल के मेरे नौजवान जो निगेटिव सोच रखता है और डरता है, जो हमेशा निगेटिव थिंकिंग है, उससे वो मेरे अच्छे साल के बुजुर्ग है ना, वो उसको पूरा 100% मात दे देंगे, ये इम्पैक्टेड हो जाएगा उसे, वो बुजुर्ग मेरे उन्हें कुछ नहीं होगा। मानसिकता बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसे हम अगर अभी इस शिविर में जो स्ट्रांग बना देंगे ना, इसके आगे लाइफ में आपके कुछ भी बड़े कितने ही बड़े संकट आने दो, आप उसे यू पार कर दोगे। ये मेरा दावा है, 100% दावा है। ये शिविर का सेशन जैसे जैसे शिविर आगे जाएगा ना, मैंने लास्ट 2 सेशन रखे ना, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपने जिंदगी में इससे पहले ना वो सेशन किए होगे और ना आगे करोगे। ओके, मेरा दावा है, आपको आपकी जिंदगी हर सेशन, मेरे टीम के हर सदस्य जिस दमखम के साथ जो क्वालिटी डिलीवर करेंगे, वो आपके लाइफ में 100% हर मिनट में, हर सेकंड में आपको वैल्यूज देके जाएंगे। ये तो झलक है। ओके, ये तो जस्ट शुरुआत है। जैसे जैसे सेशन आगे जाएगा ना, आप सेशन में सब दमदार लीडर है, पावरफुल लीडर्स है सब, कोई भी सेशन आप मिस मत कीजिएगा। और यहाँ से बाहर कुछ नहीं मिलेगा, वो अगर ये 1 घंटा छोड़ दिया तो बाहर इसके लायक कुछ नहीं रखा है। आप लाखों करोड़ रुपए भी है ना, तो इसके सामने बहुत ठीक है, कुछ नहीं है वो। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनंती है, क्योंकि मुझे कमांडिंग बोलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग है ना लाइटली लेते हैं, और मुझे किसी से कंपेयर मत कीजिए। मैं कितना ग्रेट हूं तो मैं धीरूभाई अंबानी से, मुकेश अंबानी से ग्रेट हूं। मैं कितना लो हूं तो बिल्कुल जो झोपड़ी में रहता है गरीब आदमी, उससे भी मैं लो हूं। ओके, डोंट थिंक मैं हूं। ओके, आप मेरे से वैल्यू लेके जाइए। ओके फाइन, तो आपके लाइफ के लिए मैं मेरे हृदय से, मेरे दिल से आवाज निकाल रहा हूं, आप ये कीजिएगा। एक भी सेशन मत मिस कीजिएगा। आपके साथ और फैमिली के लोग जुड़िएगा, ये बाहर नहीं मिलेगा। इसमें से कुछ पार्ट जरूर मिलेगा, लेकिन ये पूरा सेशन में जो डिजाइन किया है ना, ये सारी क्वालिटीज आपको बाहर किसी भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरे शिविर में बड़े 20-20 साल से जिन्होंने तपस्या की, ऐसे गुरुज पार्टिसिपेट हुए थे और उनको वैल्यूज मिले, हर एक को वैल्यूज मिले। ये रिजल्ट है मेरे शिविर का, मेरे सब वर्क का, इस वर्क का, ईश्वर की दया से, मेरे सारे गुरुओं की दया से 100% रिजल्ट है। कोई भी एक बंदा या बंदी नहीं मिली कि जो बोलती है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। आपको भी आप खुद को कंपेयर कीजिए कि आज सेशन शुरू होने से पहले आपके अंदर क्या सिचुएशन थी और अभी क्या सिचुएशन है। और ये जो सेशन है, जिन्हें मैंने लिखा है कि ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह वगैरह यहाँ से शुरू होता है, फिर हेल्थ, फिर पीस, ओके, फिर हैप्पीनेस, फिर जॉय, और वो खत्म होता है आपके सक्सेस पे। जो लास्ट सेशन है मेरा, वो आपको सक्सेस पे खत्म होगा। जो आपने सपने देखे ना जिंदगी में, उन सपनों तक मैं आपको लेके जाऊंगा। ओके, तो ये सेशंस केवल कोरोना के लिए डिजाइन नहीं है, दिस इज फॉर योर लाइफ। इसको अगर मार्केट से हम कंपेयर किया जाए तो प्रोफेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू 20,000 से कम नहीं है। लेकिन कोरोना का माहौल है, इसलिए हमें भी सेवा करने का भगवान ने मौका दिया। पैसा तो जिंदगी में बहुत कमा लिया, आगे भी कमाएंगे, लेकिन ये कोरोना की वजह से जो माहौल चल रहा है, तो मेरे भारत के भाइयों बहनों के लिए मेरा कुछ करते हुए लगता है, मेरे पास अगर कुछ गुरु विद्या है तो मैं उन तक पहुंचाऊं।
ओके, तो ये कोरोना, थैंक्स टू कोरोना कि ये सेशन सबको फ्री दे रहा हूँ, वरना ऐसे इतना फ्री सेशन मैं कभी डिजाइन में नहीं करता, मेरे पास वक्त भी नहीं होता। मैंने मेरे कंपनी के सारे जो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स थे वो 2-3 महीनों के लिए पूरा आगे पोस्टपोन कर दिए है। पूरा वर्क मैं समर्पित हूँ इस काम के लिए अगले 2-3 महीने, और मेरा जो थोड़ा बहुत काम चलता है मेरी रोजी रोटी के लिए, उतना मैं उसमें फोकस हूँ। और मेरे क्लाइंट्स पे मैंने बोल दिया, सॉरी आपके एक्सपेंशन प्लान मुझे 2-3 महीने के लिए छुट्टी दे दीजिएगा। ओके फाइन, सो आई एम विथ यू। ठीक है, बातें तो बहुत है, सेशंस में कम करेगा। हम अभी सीधा शिफ्ट होता है सुरक्षा चक्र पे। सब आराम से बैठ जाए। अभी उससे पहले मैं एक शॉर्ट में एक ओंकार की टेक्निक बताता हूँ। ओंकार साधना का मेरा जो सेशन है वो भी आपने ओंकार को कई बार किए होंगे, लेकिन ऐसी इस तरह से नहीं किए होंगे, तो मैं आपको उसका नहीं बताता। अब सीधा पर सिंपल ओंकार की टेक्निक है। मैंने भी ओंकार के बहुत सारे टेक्निक सीखे हैं, कम से कम 25-50 तक होगी, वो भी आई डोंट नो। तो उसमें से जो सिंपल है, थैंक्स टू नासिक के अपने योगाचार्य विश्वाजी मंडलिक सर, ग्रेट गुरु, तो उनके माध्यम से टेक्निक मुझ तक पहुंचे, मुझे सिंपल लगे और अच्छी लगी, हर कोई कर सकता है। तो इसमें से हमें ओंकार को अ, उ और म में डिवाइड करना है। पहले तो 5 सेकंड डीप ब्रीदिंग, लंबी और गहरी सांस लेना है हमें। 5 सेकंड पूरी सांस भर के हो गए, फेफड़े भर के सांस ले ली, सब आराम से रिलैक्स से बैठ जाए। बाद में ये सांस मेरे अंदर भरी हुई है, अब मैं उसे अ 2 सेकंड के लिए, उ 3 सेकंड के लिए और म 4 सेकंड के लिए बोलूंगा। 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड अ, 3 सेकंड उ और 5 सेकंड में। ये आपको डेली करना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं। जिसको 5 सेकंड नहीं ले सकता है वो कम सांस ले, जितने कैपेसिटी उतनी ले, धीरे धीरे शुरुआत करें। मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल। अभी सांस भर ली मैंने पूरी 5 सेकंड, आंखें बंद। अब ये अ उ म बोल के हो गया तो 2 सेकंड या 3 सेकंड हमें पॉज लेना है, रुकना है, फिर से गहरी लंबी सांस लेना है, फिर से बस बिल्कुल सिंपल है। 5 सेकंड सांस लेनी है, 2 सेकंड में अ बोलना है, 3 सेकंड में 3 सेकंड में उ बोलना है और 5 सेकंड में म बोलना है, अ उ म, फिर 2 सेकंड का पॉज। ये आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ये बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आप थोड़ा पहले सांसों की प्रैक्टिस कुछ आवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा समय कम है तो आई हैव टू बी हरी। मुझे अभी 10 मिनट रहे, लास्ट 10 मिनट, तो मुझे फास्ट जाना पड़ेगा। और सुरक्षा चक्र मुझे आज आपको सिखाना है किसी हालत में। आराम से बैठ जाए चेयर पे, सुरक्षा चक्र फिर से बाद में मेरे किसी सेशन में अगर मुझे मौका मिला या फिर कोई अगर एक्स्ट्रा सेशन में आपके लिए रखूंगा। ओके, अदर देन दिस मीटिंग कुछ रखना मौका मिला तो देखता हूं। अभी आप आराम से बैठ जाए, अपनी पीठ सीधी, गर्दन और कंधे रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद कर ले, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, पूरा बॉडी और माइंड रिलैक्स। अब हम ब्रह्मांड से प्रार्थना करेंगे और ब्रह्मांड की पावर हम इस सुरक्षा चक्र में इस्तेमाल करेंगे। ब्रह्मांड से तेजस्वी सफेद प्रकाश, व्हाइट लाइट मेरे शरीर के ऊपर बीच में जो क्राउन चक्र है, यहाँ पे बीचों बीच, उससे मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। अब सबसे पहले वो मेरे सिर के एरिया में फैल रहा है, तो मेरा जो भी निगेटिविटी थी, भय था, डर था, टेंशन था, नकारात्मक थी, वो सब हट गए हैं। वो ईश्वरीय प्रकाश, तेजस्वी सफेद प्रकाश या फिर दैवी शक्ति, उससे पूरे नकारात्मकता, भय, डर, टेंशन सब निकल गए हैं। वहां पर मेरा मन शांत हो गया है, मेरा मन सकारात्मक बन गया है, मेरे विचार सकारात्मक बन गए। अब वहां से मेरे चेहरे से होते हुए धीरे धीरे वो मेरी बॉडी में प्रवेश कर रहा है। मेरी जीवा पे अच्छी वाणी, मेरी वाणी अच्छी हो गई है, मुझे हर चीज का स्वाद अच्छा लगने लगा है, मेरी आंखों को अच्छी अच्छी चीजें देखने की आदत गिर गई है इस सफेद प्रकाश के कारण। मेरे नास्तिका को अच्छा स्मेल सुनने की आदत गिर गई, मेरे कानों को अच्छे शब्द सुनने की आदत गिर, मेरे गले में मेरा जो स्वर यंत्र है
वहां पर अच्छी वाणी निकल रही है। मेरे कंधों के थ्रू होते हुए वो तेजस्वी सफेद प्रकाश मेरे पूरे हाथों में फैल रहा है, आगे मेरे हृदय में जा रहा है। हृदय में जो सारा द्वेष था, ईर्ष्या थी, मत्सर था, घृणा थी, जो भी नकारात्मकता थी, वो सब निकल गई है। वहां पर अब मेरे हृदय में प्रेम, दया, करुणा, आनंद इससे भर गया है। अभी मेरे पूरे शरीर में, मेरे पेट में, मेरे पीठ में, हर जगह, पीठ में जो भी अकड़न जकड़न थी वो सब निकल गई है। मन की, शरीर की, सब वहां पे भी सब रिलैक्स हो गया है। शरीर मेरा रिलैक्स हो गया है। आगे आगे मेरी जांघों के थ्रू होते हुए मेरे घुटने और नीचे पूरे पैरों तक वो सफेद प्रकाश फैल रहा है। अब पूरे बॉडी में सफेद प्रकाश फैल गया है। पूरी बॉडी वो दिव्य शक्ति से भर गई है। मेरे बॉडी के हर सेल्स, हर छोटा बड़ा पार्ट, हार्ट, किडनी, लीवर, जो भी पार्ट है छोटे बड़े, सब ऊर्जा से भरपूर हो गए हैं, शक्तिमान बन गए हैं। मेरे सारे पार्ट्स अच्छे फंक्शन कर रहे हैं, पूरी तरह से बेस्ट फंक्शन कर। मेरे शरीर की सारी बीमारियां हट चुकी है। सफेद सफेद प्रकाश मेरे शरीर में पूरी तरह फैल गया है। अब मेरे क्राउन चक्र से सफेद प्रकाश बाहर निकल रहा है। अब धीरे धीरे मेरे सिर के बल होते हुए, कानों से होते हुए, मेरे कंधों से होते हुए मेरे पूरे बॉडी पे बाहर से वो गिर रहा है। अजीब, मैं पूरे तेजस्वी सफेद प्रकाश में खुद को नहा चुका हूं। मैं नहा रहा हूं। तेजस्वी पांढऱ्या प्रकाशात माझी अंघोळ झालेली आहे, ते फील करा। ओके, अब मेरे आभा मंडल में, आसपास में एक वलय बन गया है। इस तेजस्वी सफेद प्रकाश के कारण मेरे बॉडी के पूरे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन गया है। ये सुरक्षा चक्र इतना पावरफुल है, उसमें ब्रह्मांड की शक्ति है। अब मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। अब मेरे शरीर में कोई भी जीव जंतु, सूक्ष्म जंतु प्रवेश नहीं कर सकता। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। मैं कामयाब हूं। मैं अमीर हूं। मैं आनंदी हूं। को जो बोलना है उसमें ऐड कीजिएगा। अभी आपकी पूरी बॉडी सुरक्षित। मैं आज दिन भर जहां भी जाऊंगा वहां पर मेरे साथ ये सुरक्षा चक्र रहने वाला है और मेरी सुरक्षा करने वाला है। हर जीव जंतु, मनुष्य, हर चीज से मेरी सुरक्षा करने वाला है। ओके, फाइन। तो इस तरह से आप सुरक्षित बन गए। ये आपको दिन में सुबह करना है या फिर जब भी घर से बाहर निकलोगे उससे पहले करना है। ओके, फाइन। एवरीडे करना है। अभी सुरक्षा से मैं तो सुरक्षित होगा। अभी मेरे बेटे को सुरक्षित करना है। अभी मेरे बेटे का नाम प्रथमेश है। आप अपने बेटे का नाम लीजिए। अब मेरे क्राउन चक्र से, मेरे सहस्त्रार चक्र से तेजस्वी सफेद लाइट बाहर आ रहा है और मेरे बेटे प्रथमेश के ऊपर से गिर रहा है। मेरा बेटा प्रथमेश पूरे तेजस्वी व्हाइट लाइट से नहा चुका है। वो पूरी तरह सुरक्षित है। वो होशियार है, मजबूत है, तंदुरुस्त है, आनंदी है, लीडर है, वगैरह वगैरह। आपको जो अब बेटा सुरक्षित है। अभी आपके बाहर कार खड़ी है, बहुत लाख रुपए की कीमती कार खड़ी है। उसके ऊपर भी मेरे सहस्त्रार चक्र से तेजस्वी व्हाइट लाइट बाहर पड़ रहा है। मेरी कार के ऊपर जा रहा है। कार का रंग, कलर, नंबर जो भी है उसके ऊपर पड़ रहा है। मेरी कार पूरे तेजस्वी सफेद प्रकाश से पूरी भर चुकी है। मेरी कार सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। मेरा गोल्ड जहां पर रखा है गोल्ड पे डालिएगा, किस पे। सो ये थर्ड पार्टी पे आप कर सकते हैं। तो ये सुरक्षा चक्र आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको पूरे श्रद्धा से, पूरे भाव से करना होगा। ओके, तो आपको मैंने आज ही एक फॉर्मूला दे दिया सुरक्षा चक्र का, दूसरा दे दिया ओंकार का, तीसरा दे दिया थॉट्स का। ऐसे आप काउंट करो कितने मिले होंगे, मुझे पता नहीं। मैं लिखता हूँ 4-5-6 सर्कल दिखे होंगे, लेकिन बहुत सारे आपको टिप्स मिल गए। ओके, ऐसा ही हर दिन आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। इतने दमदार सेशन हमने डिजाइन किए। तो सुरक्षा चक्र से आप सब रिलैक्स हो गए। अब धीरे से अपनी हथेलियों को रगड़िएगा और अपने हथेलियों के अंदर धीरे से, शांति से
प्यार से अपने आंखें धीरे से खोलिएगा। आई प्रॉमिस यू, आप सब लोग अभी रिलैक्स फील कर रहे होंगे। ओके, तो अभी कुछ ऑक्यूपेशन पॉइंट भी मैं आपको बोल सकता हूँ, सिंपल है, बाकी इसमें तो सेशन में आएगा। जिसको जब में आता है तो सिंपल क्लैप, ऐसे हाथ लंबे करके क्लैपिंग कीजिएगा, जस्ट क्लैप। बाद में एक पॉइंट है, यहाँ पर है 2 उंगलियों के बीच में, उसे क्लॉकवाइज। मैंने एक सेशन किया था, आपने नासिक के सोमैया सर है, सोमैया हार्डवेयर के, उनसे एक सेशन किया था मैंने, उनसे मैंने टेक्निक सीखी है। क्लॉकवाइज घुमाइएगा, प्रेस कीजिएगा, रिलीज करे, छोड़िएगा। क्लॉकवाइज घुमाना है, प्रेस करो, रिलीज करो, ये होगा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, जब ये अपने अंगूठी से होते जो आ रही है, तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा नॉच है, सॉरी एक छोटा सा नॉच है, वो नॉच को, उस नॉच की जगह पे क्लॉकवाइज घुमाना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है। बाद में आपके कोनी, जहां पर कोनी आती है, ये कोने का यहाँ पे जहां पे पॉइंट आया ना, बस वहां पर दबाना है, आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, जहां पर यहाँ पे जो फोल्ड हुआ है उसके नीचे, एग्जैक्टली नीचे, जहां पर ये फोल्ड आया है उसके नीचे, बस क्लॉकवाइज घुमाना है, अपने छाती के बीचों बीच क्लॉकवाइज घुमाना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है। ओके, और एक है आपल्या मानेचे सगळे जे बोन्स आहेत स्पाइनल कॉर्डच्या आधी, तिथे वरती एक उंच वटा है, त्याच्या खाली उससे नीचे एग्जैक्टली जहां पर नॉच है, वहां पर क्लॉकवाइज प्रेस कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ओके, इससे भी आपका टेंशन एंजाइटी कम हो जाएगी, आप रिलैक्स फील करोगे। बस सेशन खत्म कर रहा हूं, अभी 1 मिनट बचा है। ये शिविर और आज का सेशन लेने के लिए जिन्होंने मेहनत ली, वो IWC की टीम, मिनल जी मैडम और उनकी सारी टीम, इनका मैं शुक्रिया करता हूँ। और आप यह बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। इस कार्य से आप समाज में कई सारे कुटुंब, अभी जो लोग आए थे, ये लोग कितने लोगों को बताएंगे पता नहीं, आप इसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक आप ये सेवा पहुंचा रहे हैं। ईश्वर आपको आपके लाइफ में आपके सारे सपने पूरे करें, आपका सब मनोकामना पूरी करे, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं रुकता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for the good session. Now we close today's session. I request everybody. मैम, कल का सेशन 7 बजे से वो डिक्लेयर कर दीजिए ना, कल का टाइमिंग Yes. पूरा और कल से जो सेशन है 2 जुलाई to 7 जुलाई तक, वो 7 बजे शुरू होगा। आप सभी ने 10 मिनट पहले ही लॉग इन करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम सेशन के लिए दे सकते। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेक्शन था। अच्छा मैम, सारे पार्टिसिपेंट का भी मैं धन्यवाद कहूंगा, वक्त के कारण उनका भी सबका धन्यवाद। आपने आपका वक्त, कीमती वक्त दिया। ईश्वर आपके सारे मनोकामनाएं पूरी करे। थैंक यू सर। Thank you. Minal ji, thank you to all the district committee members, all the PDCs, all the presidents, PPs of IWC of District 303, and all my dear friends. Thank you all. आपके फीडबैक, मेरी रिक्वेस्ट है, आपके सारे फीडबैक्स अपने शिविर के ग्रुप पे डालिएगा। आपका जो ग्रुप बनाया ना मीना मैडम ने, वहां पे आपको सेशन कैसा लगा, क्या वैल्यूज मिले, तो आप सबने कृपया डालिएगा उस पर। आपके मनोगत वहां पर व्यक्त कीजिएगा, आप कैसे आपने फील किया, क्या वैल्यूज आपको मिले। मेरी रिक्वेस्ट है वो डालिएगा, उससे बाकी लोगों को और प्रेरणा मिलेगी। चलो, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. बहुत अच्छा सेशन था सर। थैंक यू। धन्यवाद मिनल जी, आपने मौका दिया, इसलिए मैं प्रेजेंट हो पाया, वरना और अपने पास ये बहुत अच्छा, और इतने लोगों को उसका फायदा हो रहा है, वो सबसे अच्छा है। और हमारे पास टाइम है, अगर आप चाहो तो थोड़ा 10-1 मिनट आप ऊपर यूज कर सकते हो ना, कर सकते हैं। हाँ, अनलिमिट वाला पैक है। सिर्फ आज दूसरे क्लब की शेड्यूल है आगे, इसीलिए कल से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 10-15 मिनट इधर उधर चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा फिर तो, और भी धन्यवाद, क्योंकि मुझे लगने वाला है टाइम, आखिरी सेशन के लिए तो जरूर लगने वाला है।
नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 7 के बाद किसी का शेड्यूल नहीं है, कल से पहले ही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, ma'am. Yes, thank you very much. Yes. Thank you. थैंक यू। चलो Thank you, sir. Thank you. Thank you. मीना जी मीटिंग एंड कर दूं? Yes, yes, Minal ji. Yes. Thank you.